practice in secret. You are a product of your scene. You can't just have one really good player and everyone else in your area is just really bad. Nobody knew just how good Pakistan was. Arslan Ash shows up at EVO and he wins, and then he's like, you guys haven't seen all the people I play with back home. All the Japanese players were like, what the hell? They started flying to Pakistan to practice, and they're getting destroyed by them. Being EVO champion is no small thing. When I came back from home, every children in my city knows me. This is Arslan. Fight. Oh, he does it! It's over! Arslan's gonna get the tournament! Arslan, he's your EVO Japan champion! The time, look at the time! Oh, got a follow-up! Unbelievable, the lead! Oh, he got the lead! Oh shit! Arslan Ash! Oh! They trade blows. Oh, man, that was a crazy trade. Arslan cementing his position as... When I first met Sumail, I knew this kid was going to be big. Looking at Roshan. Sumail! The five-man coil! Sumail! He gets every single one! He's as confident as he is controversial. Money or the ego? Or the title? What am I going to do with the title? I'll take the money. Indispensable as he is infuriating. Just goes like, oh, this guy didn't practice, and you know, I'm just taking his shit, and I'm like still taking it for 4 months. I have no fucking issue with it. Then he just doesn't stop, you know, like someone keeps poking you, at one point you're gonna explode. Tremendous as he is temperamental. 4 dead, possibly 5, and 1 on the run. No escape, no mercy. He'll die as well, and it's an ultra for the young Sumail. Regardless of what you may think of Sumail, his talent is outright indisputable. He's the youngest millionaire in the history of esports, and arguably the single greatest Dota player of all time. LGD smell blood. They're going in, maybe pressing forward. EG, last heroes left alive. It's a blade mail from Arteezy trying to stem the bleeding, but it's not happening. Another in the grave. EG all out of focus, in trouble, and inside their base. This is looking like it's going to be it. And Sumail, last one alive for the team, dead again. And GG LGD are moving on to the grand finals. Going into TI8, EG were ranked 11th and were 11,000 points out of first. In what was arguably the most competitive TI of all time, they finished third. And boy, did they earn it. Sumail finished the International 8 having averaged the second most fantasy points of any player, with no one else from EG even making it into the top 25. He declared his return to the mid lane to be the return of its king, and despite the fact that in doing so, he'd invoked a community-wide eye roll, his performance at TI8 had been nothing short of regal. Sumail once again emerged from an international as quite possibly the best mid laner in the world. Even though he missed yet another chance to play for a second TI, something that hadn't been true for a long time was made resoundingly clear. Whatever the cause of EG's shortcomings was, whatever had kept them from going all the way at TI, it most definitely wasn't Sumail. Ultimately, whether you love or hate Sumail, it isn't because he thinks he's the best. It isn't even because of his arrogance, his irreverence, or the drama he incites. It's because, in spite of all those things, he's probably right. He was greeted with flowers in the airport and even made the national news. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनाब पाकिस्तानी गेमर अरसलान आश सिद्दीकी ने इस साल की आलमी वीडियो गेमिंग चैंपियनशिप EVO 2019. But there are killers just as good as Arslan still in Pakistan who haven't gotten to travel. His win has sparked a few Pakistani players to sign with foreign orgs, but true change takes time. Pakistan isn't quite a tech and powerhouse just yet, but their day is coming soon. Because Pakistan gave the world Arslan Ash, and Arslan Ash
paid them back with good ass Tekken. नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि कहीं कहीं ये अपने आप के लिए भी जानलेवा साबित होता है। मैं बात कर रही हूँ ऑनलाइन बैटल गेम पबजी के हवाले से, जिसकी वजह से खुदकुशियों के मामले पर अब फाइनली नोटिस लिया गया और पीटीए ने पबजी गेम पर आर्जी तौर पर जो है उसको बैन लगा दिया और आर्जी तौर पर इसको मुअत्तल करने का फैसला किया। जी जनाब, अब पीटीए के बकौल चूंकि अवाम की तरफ से शिकायत आ रही थी लिहाजा इस पे बैन लगाया गया, लेकिन ऑनेस्टली मुझे ये नोटिस पीटीए का ज़ाती तौर पे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि इस गेम में पहली बात तो ये कि लिखा हुआ है कि ये गेम 18 साल से कम उम्र अफराद के लिए नहीं है, तो इस गेम को आप एक तो एडल्ट्स की गेम है, फिर प्लस अगर आपके घर में आपके बच्चे वगैरह या जो भी अंडर एज बच्चे खेल रहे हैं तो इसमें कसूर आपका है, गेम का नहीं है। मतलब बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं, मिसाल के तौर पे फेसबुक है जो कि 18 साल से कम उम्र अफराद के लिए नहीं है। अगर आपके बच्चे यूज़ कर रहे हैं तो अपने बच्चों को कंट्रोल करें, ना कि फेसबुक पे बैन कर दें। आपके घर में चाकू होगा, आपके घर में गाड़ी होगी, अपने बच्चों को नहीं देंगे। आपको लगता है कि जब ऐसी बैटल गेम्स जब खेली जाएंगी तो क्या उससे आपके नफ्सियात पे कोई असर नहीं पड़ेगा, जिसमें आपका टारगेट होगा आपने बंदों को मारना है, आपने तबाही मचा देनी है। जैसे ऐसी भी गेम्स है जिसमें आप चोरी करते हैं, फिर आप पैसे जमा करते हैं, फिर गाड़ियां खरीदते हैं। देखिए एक बात आ रहा है इसका एक वर्ल्ड कप, माउंटेन ड्यू, रेड बुल, केएफसी, यू नेम इट, इतने बड़े बड़े स्पॉन्सर्स ने स्पॉन्सर किया। पर मीडिया बाइंग हाउसेस जो हैं इस वक्त मुझे भी फोन कर रहे होते हैं, यार क्या सिलसिला है, सब लोग अपना पैसा पाकिस्तान से खींच रहे हैं। ये उसी तरह है जैसे YouTube को एक जमाने में बैन किया गया था, आज तक YouTube स्पेस यहाँ नहीं आता। ये जो बात होती है ना कि साइकोलॉजिकली दिमाग हिला देता है, गले, ओ भाई कोई रिपोर्ट दिखाओ। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप जाकर अभी गूगल पे लिखें वीडियो गेम्स का दिमाग पे क्या असर होता है। टेड टॉक से लेकर दुनिया की बड़ी बड़ी रिसर्चेज है कि जो वीडियो गेम खेलते हैं उनका दिमाग ज्यादा तेज चलता है, वो कॉन्फ्लिक्ट को जज कर सकते हैं। मैं पबजी का प्लेयर नहीं हूं, मेरा मोबाइल चेक कर ले नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं तंग आ चुका हूं कि यहां पर बापर्दा खवातीन घर पे बैठ के पैसे कमा रही हैं और ये जो स्ट्रीमिंग करती हैं वो घर पे बैठ के पैसे कमा रही हैं, कहीं उन्हें जाना नहीं पड़ता, हरासमेंट फेस नहीं करनी पड़ती, हुकूमत कोई जॉब अपॉर्चुनिटी तो देती नहीं है, जो काम हो रहा है उसको भी रोक रही है और कह रही है वीडियो गेम है, वीडियो गेम है, ये वीडियो गेम आपको नजर आती है। मैं कहता हूं जो लोग कॉम्पिटेंट नहीं है उनको चेक किया जाए, कहीं ये रॉ के एजेंट तो नहीं बैठे हुए जो इस तरह की चीजें बैन करते हैं। वर्ल्ड कप इसका आने वाला है और उस वक्त ही आपने कह दिया जी इसको बैन कर देते हैं। बैन ये फिर अच्छा यूट्यूब जिस जमाने में बैन हुआ कौन हिसाब किताब देगा? क्या आज तक वो यूट्यूब वाले यहाँ नहीं है, फेसबुक यहाँ नहीं आता, पेपल यहाँ नहीं आता, नेटफ्लिक्स यहाँ नहीं आता, इसका हिसाब कौन देगा? हमारा मुल्क जहाँ हर जगह करप्शन ही करप्शन है, जहाँ आपको कोई बिजनेस शुरू करना हो आपको करप्शन फेस करनी पड़ती है। ऑनलाइन वाहिद जरिया है जिसके थ्रू आप हक हलाल के तरीके पैसे कमा सकते हैं, आप किस तरह से बैन कर सकते हैं? अच्छा मैं वकार भाई, आपने एक और बात भी की थी, आपने कहा था कि इस पाबंदी से पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स में ब्लैक लिस्ट हो सकता है। इससे क्या होगा? वो गया है। ये जो बाबे बैठे हैं, ये जो बाबे बैठे 60-60 साल के इदारों में, इनसे पूछा जाए कि अगर आपको नहीं व्हाट्सएप यूज करना आता तो भाई हमारा कसूर थोड़ी है, आपने अभी ब्लैकलिस्ट कर दिया है। जैसे देखें फेसबुक की अर्निंग खुली पाकिस्तान में? नहीं खुली। आज घर पे बैठ के बच्चा कुकिंग करके या कोई भी चीज करके औरत कमा सकती है, उसको बंद कर दिया ना, उसका कौन जिम्मेदार है? ये ब्लैकलिस्ट यहाँ हो रहा है। मैं कह रहा हूँ छोटी मोटी इंडस्ट्री थोड़ी है, मेरा क्या ताल्लुक भाई? पहली बात तो ये ना मैं स्ट्रीमिंग करता हूँ गेमिंग की, ना मेरा, मुझे तकलीफ उठती है कि हमारे मुल्क में डिजिटल की हर चीज को रोक दिया जाता है। आप मुझे कोई एक रिसर्च रिपोर्ट दिखाएं। ये पीटीए वाले उस दिन किसी शो में बैठ के कह रहे थे हमारे पास रिसर्च रिपोर्ट दिखाएं, कौन सा बंदा कहता है कि जी इसकी वजह से दिमाग खराब होता है? जरा मुझे, अच्छा अमेरिका भी पागल है, बाकी सारी दुनिया पागल है, अच्छा और ये सारी दुनिया बिल्कुल कुछ, पाकिस्तान को सब कुछ पता है। पाकिस्तान में जो लोग बैठे इनको सब पता। क्रिकेट की वजह से 4 खुदकुशियां हुई हैं पिछले 6 सालों में, क्रिकेट बैन कर दिया आपने? क्रिकेट क्यों नहीं बैन की? क्रिकेट के लिए स्पॉन्सर ढूंढना पड़ता है, यहाँ बच्चे घर पे बैठे हुए। आपको पता है जापान से लास्ट ईयर अरसलान ऐश के नाम से लड़का है, वो जापान से इतने पैसे जीत के आया। वहां जापानी लोग यहाँ आना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं कि वीडियो गेम खेलते कैसे हैं। वीडियो गेम खेलने से नुकसान क्या है? घर में बैठा हुआ बच्चा खेल रहा है, आप मुझे खुदकुशी दिखाएं किसने की है, नाम बताएं भाई। आप मुझे वो बंदा दिखाएं जिसने खुदकुशी की। देखिए इसमें 2 पॉइंटर्स आ गए, आपकी बात बिल्कुल वाजे हो गई। एक तो ये कि खुदकुशी के मामला बिल्कुल अलग है, उनके ऊपर तहकीक करें, इन्वेस्टिगेट करें, रीजंस कुछ और निकलेंगे, ये नहीं। दूसरे ये कि हमारे यहाँ रेलेवेंट लोगों को इसके बारे में दुरुस्त समत में पता ही नहीं है, सही इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं है, इसीलिए ऐसा होगा। आप बताएं जिसमें कोई खातून घर पे बैठ के वीडियो गेम खेल के जिसमें शक्ल नहीं दिखानी पड़ती पैसे कमा सकती है, आप हुकूमत से बोले इस तरह का ऑल्टरनेट निकाल कर दें।
कोई निकाल कर दे मुझे। और अभी जो पाकिस्तान 11वें नंबर पे रैंक करता है पाकिस्तान, इंडिया कहीं दूर दूर तक नहीं है। अब ये पाकिस्तान को जो ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है, आपको लगता है माउंटेन ड्यू और बाकी स्पॉन्सर आंदा या कभी टूर्नामेंट कराएंगे, कभी नजर आएंगे आपको? इसका कौन हिसाब देगा? चलो ये टेम्परेरी बैन 10 दिन बाद हट गया, लेकिन जो नुकसान पहुंचा दिया है आपने, कितना नुकसान, कितना इसको जो कह रहे नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि कहीं कहीं जो पाकिस्तान PMCO जीत कर क्वालिफाई करी थी वर्ल्ड लीग के लिए, टीम का नाम था फ्री स्टाइल। अब बहुत ही ज़्यादा इंटेंस प्लेयर्स थे, क्योंकि जैसा मैं कल बात कर रहा था, पाकिस्तान रीजन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव खेलना पसंद करती है वहाँ की टीम, और फ्री स्टाइल भी उसी अग्रेशन के ऊपर जो है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस निकाल रहे थे। आई मीन आई रिमेंबर बाबा, मलिक, और एक रीसेंट रोस्टर चेंज भी हमको देखने को मिला था जिसमें मोटू ऐड हुए थे रोस्टर के अंदर। और आई विश आई कुड हैव सीन दिस टीम परफॉर्म ओवर हियर एज वेल, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ सिचुएशंस के चलते वो जो है PUBG मोबाइल वर्ल्ड लीग में खेल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर उससे आगे बढ़ते हैं और ग्रुप डी के ऊपर नजर डाल बट यहाँ पे यूरेली को नॉकडाउन करा है वहाँ पे फ्री स्टाइल के प्लेयर ने, एंड बाबा ने भी यहाँ पे RCS के डुएलो को नॉकडाउन करें, पूरा फिनिश करेंगे काशुफ, और यूरेली को भी पूरा फिनिश करेंगे काशुफ। और यहाँ पे एक मौजूदगी दिखा दी है फ्री स्टाइल के प्लेयर्स ने कि वो लोग क्यों यहाँ पे वर्ल्ड लीग तक पहुंचे। अब देखते हैं ये फाइट किस तरीके वो लोग अंजाम तक पहुंचेंगे। सारा यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज जरूर लेते हैं, बट यहाँ पे फ्री स्टाइल के प्लेयर्स के पास अच्छा खासा कंपाउंड है खेलने के लिए, हालांकि सामने प्लेयर्स के पास सिर्फ ब्रोकन वॉल है। हाँ यस जरूर, यहाँ पे फ्री स्टाइल ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किल्स निकाले, और ये जरूरी भी था क्योंकि ओपनिंग वीकेंड है, आप अच्छा खेलना चाहोगे क्योंकि इसी से आपको सुपर वीकेंड का रास्ता मिलेगा। और काशुफ का यहाँ पे बहुत ही प्यारा ग्रेनेड आता हुआ सारा को नॉक कर चुके हैं, और वेब अकेले ही बचे यहाँ पे राइजेक्ट स्कारलेट की तरफ से। अभी देखना पड़ेगा FS के प्लेयर्स की अगर बात करी जाए तो बाबा के बारे में काफी चर्चे हमने सुने, ओशन और जॉनी से बोला जाता है कि बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव प्लेयर है और काफी अच्छे किल्स निकालने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल, मेरे को उनकी आउटफिट भी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, जिस तरीके से उन्होंने पूरा मैक्स लेवल कर लिया रॉयल पास का। बट अभी फुतरोत्सु भी देखते हैं वो किस तरीके से यहाँ पे चार्ज इन करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज वेब एक इकलौते ऐसे प्लेयर है जो बचे हुए हैं इन्हीं की बाउंड्री वॉल्स के अंदर, ये बाहर जाने की भी कोशिश नहीं कर पाते। यहाँ पे अल्ट्रॉन ने जरूर लक्सी को नॉकडाउन कर दिया, BTR का स्क्वाड दिक्कत में आ सकता है।